میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پہلگام فالز فلیگ آپریشن نیو یارک ٹائمز نے بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف عالمی برادری سے تعاون مانگ رہا ہے جس کے ذریعے وہ فوجی کارروائی کا جواز پیدا کر سکے۔ بھارت کے جنگی جنون پر نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ شائع کر دی۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے فوراً بعد بھارت نے پاکستان پر الزام دھر دیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں ملکی سربراہان سے رابطہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارت عالمی برادری میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے۔ مودی سرکار نے پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام اور شدید رد عمل کی بھی دھمکی دی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ میں سفارتکاروں کو بریفنگ میں بھارتی حکام نے ہندوستان کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت نے 1960 کے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا۔ مودی سرکار نے پہلگام حملے کے حوالے سے اب تک پاکستان کے خلاف کوئی عوامی ثبوت پیش نہیں کیا۔ دیگر ریاستوں نے بھارت سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت نے سفارتی تعلقات محدود کرتے ہوئے سفارتکاروں کو ملک بدر اور ویزے منسوخ کر دیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں۔ بھارت میں مسلم مخالف جذبات بھی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ بھارت میں کشمیری طلباء کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بھارت سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت کی یہ کوشش صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت نے پہلے دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارت کی اس کوشش کے نتیجے میں مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسک کا ریلا گزرا، جبکہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد مغربی دریاؤں کی نگرانی وزارت آبی وسائل اور وابڈا کر رہی ہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو دوسری جانب چین نے پہلگام واقعے کے معاملے پر پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کی مفادات کے تحفظ کی کوشش کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پہلگام میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کی منصفانہ اور بروقت تحقیقات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے راستے کو اپنائیں۔ رخ کریں گے جیکب آباد کا، جہاں سول سوسائٹی اور سیاسی سماجی شخصیات نے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کی اور نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کر کے جنگ کو دعوت دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد غازی سے۔ جی غازی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں ڈپٹی کمشنر چوک پر موجود ہوں۔ جیکب آباد کے باشعور اور شہریوں کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے، جہاں پر جو کثیر تعداد میں یہاں پر شہری موجود ہیں جو انڈیا کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کر رہے ہیں، اور انڈیا کے خلاف جو ہے ان کے نعرے بازی کرنے والے کارکنان اور شرکاء ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ہم جو ہے اپنا بھارت کو، انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ محمد میاں سومرو کی قیادت میں، سردار طارق خان لاہور کی قیادت میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی اور ہمارے شہری ہیں جیکب آباد کے، وہ سارے جو ہے ہم جو ہے اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیں گے۔ پاک فوج کی حمایت میں ہم نے ریلی نکالی ہے۔ جو سنتاس معاہدہ ختم کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، مودی نے پہلے بھی ایک کشمیر پہ اس نے وار کیا ہوا ہے جس کا اقوام متحدہ میں کیس چل رہا ہے، اور ابھی یہ ختم کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کو کمزور کروں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پوری عوام جو ہے پاکستان فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ مودی سرکار نے پاکستان میں بہت مداخلت کرا ہے۔ ویسے تو بلوچستان میں سارے میں لوگوں کو مروا رہا ہے، فوجیوں کو مروا رہا ہے،
अभी सारे में पैसे का घेराव है। हम अपने पाक फौज के साथ हैं। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं आप लड़ेंगे, हम आपसे भी लड़ेंगे। अब एटमी हम पावर है। आप बार बार हमें पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं, इसलिए हम अपने पाक फौज के साथ हैं। आपने यहाँ पर शुरा की बातें सुनी। उनका कहना है कि इंडिया ने सिंतास मुआहिदा ख़त्म किया और पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत की है, इस वजह से हम पाक फौज के हक में जो है वो रैली निकाली है। जी। और भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अमरीका में एहतजाज की कोशिश नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक मोदी साहब पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुस्तान का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज, नाम निहाद एहतजाज सरहदी दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से तयशुदा था। भारत के इस एहतजाज के पेश नजर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। भारत के इस एहतजाज को पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बनाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान सरहद पर फॉलो अप ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक अफगान सरहद पर कामयाब ऑपरेशंस में मजीद 17 खवारजी मारे गए हैं। हलाक खारजियों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। 3 रोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 71 खवारिज हलाक हुए। और पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मस्बत कदम है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मस्बत कदम है। मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कासी बनती जा रही है। अगर दिल्ली वाले लापरवाह हुकूमत अमली का रास्ता अपनाते हैं तो पाकिस्तान तैयार है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। कराची में हुकूमत सिंध और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के नुमाइंदों के दरमियान अहम मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफ़द ने निसार हुसैन जाफरी और गुलाम यासीन नियाजी की क़यादत में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी मन से मुलाकात की है। मुज़ाकरात में शब्बर मलिक, फजल इलाही, हाजी इलियास समेत दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। इस मौके पर ऑल ट्रक डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर हाजी यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी जान आलम और मियां जान भी मौजूद थे। फ़रीक़ैन के दरमियान ट्रांसपोर्ट से जुड़े अहम मसाइल, पॉलिसी मामलात और मुतालबात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पाई जाने वाली मुश्किलात का हल निकालना और हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बेहतर रवाबित कायम करना है। खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज स्कीम 33 में नामालूम अफराद की जानिब से हंगामा आराई के दौरान दुकानों पर लूट मार की CCTV फुटेज चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम अफराद दुकानों पर लूट मार कर रहे हैं। अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज स्कीम 33 में नामालूम अफराद की जानिब से हंगामा आराई के दौरान दुकानों पर लूट मार की CCTV फुटेज चैनल 5 न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम अफराद दुकानों पर लूट मार कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं गुज़िश्ता रोज स्कीम 33 में नामालूम अफराद की जानिब से हंगामाराई के दौरान दुकानों पर लूट मार के CCTV फुटेज चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, ये क्या मामला है? अरसलान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हेलो जी अरसलान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज स्कीम 33 में नामालूम अफराद की जानिब से हंगामा आराई का जो मामला हुआ था, एहतजाज की आड़ में कई दुकानों पर लूटमार भी की गई है। CCTV फुटेज चैनल 5 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोबाइल शॉप छोड़ी ना ही स्टेशनरी की दुकान को बख्शा। मौसमियात के करीब हंगामा आराई करने वाले पहुंचे तो दुकानदार सूरत हाल देख कर परेशान रह गए। दुकानों के बाहर शहरियों दुकानदारों को डंडों से मारा गया, जबकि इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक खातून बुर्का पहने अपनी गोद में बच्ची को लेकर भाग रही हैं और दीगर जो डंडा बरदार लोग हैं वो लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि हंगामा आराई के दौरान जिसके हाथ जो लगा वो लेकर भागा है।
मुलाजिम ने शलवार कमीज पहने शख्स को रोकने की जब कोशिश की तो धाता पहने शख्स ने काउंटर में हाथ डालकर पैसे निकाल लिए। डंडा बरदार अफराद की जानिब से कई दुकानें बंद भी करवाई गई। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया अरसलान। अस्पतालों में ओपीडी की बंदिश, एहतजाज धरने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस के मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके वजीर आला हाउस के गेट पर पहुंच गए हैं। हुकूमत की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस धरने में शरीक मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा 5 न्यूज़ अपडेट कर रहे हैं कि अस्पतालों में ओपीडी की बंदिश, एहतजाज और धरने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके वजीर आला हाउस के गेट पर पहुंच गए हैं। हुकूमत की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस धरने में शरीक मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस के एहतजाज के हवाले से। अस्पतालों में ओपीडी की बंदिश है, जबकि एहतजाज और धरने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस के मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके वजीर आला हाउस के गेट के पास पहुंच गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस धरने में शरीक मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। को बताएं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला चमन बॉर्डर के रास्ते जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर हबीब बांग्लाजाई ने इस सिलसिले में बोल्डिंग कैंपस के हवाले से आपको बताएं कि दौरा किया है। उन्होंने अफगान बाशिंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। कैंपस पाक अफगान सरहद 0 पॉइंट पर वाक़ अफगान बाशिंदों के लिए कायम किए गए हैं। 1 अप्रैल से 41,000 से जायद अफगान बाशिंदे चमन बॉर्डर के रास्ते वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से शहर इकबाल और दीगर अजला के साथ 1000 से जायद आज़मीन हज को एक ही छत नीचे तमाम सहूलियत फराहम की गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से सियालकोट और दीगर अजला के 7381 आज़मीन हज की आसानी के लिए शहर इकबाल में हाजी कैंप कायम किया गया। यहाँ के हाजी थे टोटल 7300 अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें मुख्तलिफ अजला के हैं, जिसमें गुजरात भी है, शकरगढ़ है, आपका जो है ना गुजरांवाला है, इस तरह कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं। उन हुजाज कराम को लोकली सहूलियात देने के लिए हमने यहाँ पर 15 बैंक्स एस्टैब्लिश किए, जो कि यहाँ पर ही उनको गिव अवेज दे रहे थे। इसी तरीके से हमने टिकटों का और उनका भी अरेंजमेंट यहीं पे किया, ताकि हुजाज कराम को जो बार बार चक्कर लाहौर के लगाने पड़े वो ना लगे। लगाए गए हाजी कैंप में 15 से जायद सहूलियात के काउंटर कायम किए गए हैं, जिसमें एहराम बांधने की अमली तरबियत से लेकर वैक्सीन, सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल, टिकट और अहम मालूमात एक ही छत के नीचे मुहैया की गई हैं। हाजी कैंप के अंदर सारी सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी तरबियत भी की गई, यहाँ पे हमें वैक्सीन लगाई है और हमें मेडिसिन भी पास करके दी है। और उसके अलावा हमें जो बैंक की तरफ से गिफ्ट भी दिए गए हैं, बैगों के जो जरूरी सामान था वो भी दिया गया है। और यहीं से हमें हाजी के वीजे, टिकटें और तमाम शेड्यूल जो वहाँ का रहन सहन का वो सारा दिया जाएगा। और हमारे लिए बहुत आसानी पैदा की है इन्होंने। हमें सिर्फ अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके सिर्फ फ्लाइट ही करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ਅਸੀਂ इधर आए हैं, इन्होंने बहुत सारे ना अच्छा तावन किया है। और ये मेडिसिन जो लेनी सी वो ली है, ट्रांजैक्शन लवाना सी वो लवाया, नाल इन्होंने बैग दिए ने, जो भी इनके करने वाला काम उन्होंने वो अच्छा बहुत अच्छा किया। यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम था। हमें आते साल पहले वैक्सीन की गई है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑपरेटर थे सब लोग। फिर इसके बाद हमसे बैंक वहाँ गए हम उनकी शॉप पे, वहाँ से हमें 2 बैग मिले हैं बड़े और 2 छोटे बैग मिले हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस इकदाम को आज़मीन हज की जानिब से बेहद सराहा गया। इनका कहना था कि अपने ही शहर में एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियत फराहम की गई। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ टीवी, सियालकोट। मुल्क में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपए कमी के बाद 3,47,001 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोना 1,368 रुपए सस्ता होकर 2,97,582 रुपए की सतह पर आ गया है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $16 कमी रिकॉर्ड, जबकि फी औंस सोना $3,289 का हो गया।
आपको बताएं कि थर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को पानी की फरहमी का मंसूबा 16 अगस्त 2025 को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये एक की कंपनी है, उसका नाम है इंटरटेक वाटर प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने सिंध के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आपसे खत लिखा है जिसमें से कहा है कि इंटरटेक ने हुकूमत सिंध के साथ एक मुआहदा किया था जिसके तहत ये जो जितने भी कोयले से पावर प्लांट लगाए गए उनको पानी की मुकम्मल फराहमी करनी थी। वो अब 16 अगस्त 2025 तक ये मनसूबा मुकम्मल कर दिया जाएगा और ये पानी जो पावर प्लांट है बंद कर दिया जाएगा। अपने उन्होंने लिखा था कि अक्टूबर 2023 को महकमा आबपाशी के साथ इंटरटेक का मुआहदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि ये जो पानी है को पानी खत्म करना है वो अब काम तेजी से है जारी। और महकमा आबपाशी से गुजारिश है कि जो विंझार आपके विंझार एक इलाका है वहाँ पर पानी के ज़खायर उनसे पानी की मुसलसल फराहमी जारी रहे ताकि मंसूबा 16 अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाए। उन्होंने खत में कहा है कि काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है और ये 16 दिसंबर के जितने भी पावर प्लांट है उनको पानी की फराहमी उन्हें पानी की कमी की शिकायत नहीं हुई। ठीक है शकील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब और सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों और आलमी किरदार पर तफसील से रोशनी भी डाली गई। अमरीका के शहर कैम्ब्रिज में वाक़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतही पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसमें वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख समेत दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब में सफीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आबादी और हुजम में अहमियत के बायस आलमी सतह पर किसी तौर नज़रअंदाज नहीं हो सकता। उन्होंने आलमी चैलेंजेस के निमटने के लिए सफारतकारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी अरब में फ्रेंड्स ऑफ रियाज के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मिनिस्टर ऑफ ट्रेड डॉक्टर शगुफ्ता जरीन समेत पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान, कारोबारी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। रियाज में मुनक़िद होने वाले सेमिनार में खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और दीगर शुरका का कहना था ये तकरीब पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए एक अहम कदम साबित हुई है जिससे न सिर्फ मकामी कवानीन और मौक़े से आगाही मिली बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और समाजी रवाबित को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स ऑफ रियाज के अरकान ने भी खिताब करते हुए कम्यूनिटी के मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करते हैं बल्कि पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर भी पेश करते हैं। इस सेमिनार का बुनियादी मकसद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को मकामी कवानीन, कारोबारी मौक़े और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए रास्तों से आगाही है। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन से ज़ारे मोहब्बत के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। न्यूयॉर्क के स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर के हवाले से पाकिस्तानी और कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली और भारत के जारहाना अज़ाइम की मजम्मत की है। टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम थाम रखे थे और न्यूयॉर्क की ये स्ट्रीट पाकिस्तान के हक में नारों से गूंजती रही, जबकि शाहिद रजा रांझा, खुर्शीद अहमद भली और दीवान गुलाम मुस्तफ़ा समेत दीगर साथियों के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरीन में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के तमाम कायदीन और अरकान ने अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक कौम और कम्युनिटी बनकर पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा और फ्रांस के कुछ हिस्से बिजली की अचानक बंदिश की लपेट में आ गए हैं। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत बड़े शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गया है। हिस्पानवी बिजली के महकमे रेडलोस डे ने स्पानिया से तस्दीक की है कि बिजली की बहाली के लिए तमाम इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में बिजली से महरूम है जबकि सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने के बायस पुलिस एहलकार दस्ती तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। रुख करेंगे बुरीके का, जहां सूरज ने अपनी तपिश दिखाई तो नौजवानों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। नौजवान ठंडे पानी में नहाकर
खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे चैनल 5 के नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत के साथ ही बच्चों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। आज बहुत गर्मी थी, हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, हमारा प्लान बना और हम यहाँ पे आए हैं नहाने। माशाल्लाह से अब हम जाएंगे अंदर, बहुत मजा आ रहा है। नौजवान और बच्चे स्विमिंग पूल में स्लाइड जंप करके बहुत ही हल्ला खुल्ला कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ नहाने आए हैं स्कूल से, गर्मी बहुत लग रही थी, हमने कहा चलो जाके नहाते हैं, तो अब बहुत इंजॉय किया, स्लाइड लिया, बहुत मजा आ रहा है हमें। अपने दोस्तों के साथ नहाने आए हुए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमने हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया। नौजवानों का कहना है कि गर्मी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए दोस्तों के हमरा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे पानी में नहा रहे हैं। सूरज ने आंख मिचौली की तो अपनी तपश दिखाई तो मृत्यु के शहरियों ने भी स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहां वो ठंडे पानी में नहा के गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। कैमरा टीम अहमद के साथ मियां जमील, चैनल 5 मुरीद के। और पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात में पाए जाने वाले मशरूम का शुमार दुनिया की कुदरती तौर पर उगने वाली महंगी तरीन मशरूम में होता है। मार्च अप्रैल के महीनों में गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की नायाब तरीन और महंगी मशरूम गची उगती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब महक की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में मॉनसून के मौसम में आला किस्म की मशरूम की एक बड़ी मिकदार कुदरती तौर पर उगती है, जिसे अंग्रेजी जबान में मोरल और मकामी जबान में गुच्छी कहा जाता है। गुच्छी मशरूम की कीमती और बेशबहा किस्म है, जिसे मसनूई तौर पर खुद नहीं उगाया जा सकता। ये ग़िज़ाइयत और अफादियत से भरपूर कुदरती ग़िज़ा है। ये पाकिस्तान के इलाके कश्मीर, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। इसको अमराज़ कल्ब और दीगर अमराज की महंगी तरीन अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। मौत से हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी भी दूर होती है और बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस होती है। मगर अक्सर लोग इसकी अफादियत से नावाकिफ हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी मिकदार में ज़ाया हो जाती है। गुच्छी मशरूम पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के जंगलात में खास तौर पर ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ साया हो और ज़मीन पर जंगलात के पत्ते और टहनियाँ गल सड़ गई हों। ऐसी जगहों पर गुच्छी मशरूम फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में उगती है। मशरूम को बड़ा होने में 8 से 10 दिन का अरसा लगता है, जो कि बड़े होने के बाद 10 से 12 दिन तक रहती है और इसके बाद ख़त्म होकर ज़मीन में मिल जाती है। आबादी में इजाफा, जंगलात का कटाव, मौसमियाती तब्दीलियों और इससे मुतालिक इल्म न होने की वजह से गुच्छी मशरूम की पैदावार में वाज़े कमी वाक़ई हुई है। माहिरीन का कहना है कि लोगों को इससे मुतालिक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि गुच्छी मशरूम को जड़ से ना उखाड़ा जाए, ताकि ये हर साल वाफिर मिकदार में उग सके। अलवर में है चैनल 5 गज़र। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।